नमस्कार, आप सभी लोगों को फिर से स्वागत ऑन योर ओन स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म बोल दादा बोल। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन सुनील छेत्री का एक यूनिक क्वालिटी, जिससे मैं समझता हूं ऑल इंडियन प्लेयर्स, चाहे वो क्लब्स में खेले, ग्रास रूट फुटबॉल, एकेडमी फुटबॉल, यूथ लीग्स एंड ऑल्सो द सीनियर नेशनल टीम नीड टू लर्न। पीपल डू अंडरस्टैंड, बट वो एक यूनिक क्वालिटी सुनील के अंदर है, और वो क्वालिटी क्या है एंड उनकी ये रियलाइजेशन कि उस चीज को अपनाना है, उनकी खुद की जुबान से वो कब बोला था मुझे, इसके बारे में ही आज की सेगमेंट फिर वही कहानी याद आई। इन द मीन टाइम, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर द सपोर्ट एंड द फीडबैक। वी टेक योर फीडबैक एज ए मोटिवेशन and an understanding that we are on the right track. We are giving you the right kind of content, and most importantly and significantly, आप हमारी content को पसंद कर रहे हो। Please do like, subscribe and spread the word, because एक huge audience है जो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, वहां पे आप खबर प्लीज पहुंचाइए। I can guarantee we won't let you down. तो ये सुनील छेत्री के बारे में हम यदि वापस आए, आज की ये जो सेगमेंट और कहानी है, इससे पहले थोड़ी सी फ्लैशबैक 2012 एएफसी अंडर 16 फाइनल्स का, वहां से क्यों लेके मैं सुनील की कहानी पे जाना पसंद करूंगा। तो इनफैक्ट 2012 से एक साल पहले चले जाते, 2011 में एएफसी अंडर 16 क्वालिफायर्स में फ्रॉम ए ग्रुप कंप्राइजिंग ऑफ hosts Uzbekistan, a very strong Bahrain, India, Tajikistan and Kyrgyzstan. The qualifiers were played in Tashkent. The team comprising some of the names jo yaad aa rahe, offhand Shuprotim in goal, Sharthok Goloyan, Sajid Dhot in central defense. Sharthok went on to play for India. Myron Mendes was one of the wing backs. Jarmanpreet Singh, who later on played for India in the central midfield. Lalram Zuava was captaining the side. Uttam Rai, Alan Diori, the two guys up front. A very, very, very strong, compact, ambitious batch of boys, technically very sound, and obviously trained, spotted, scouted, and coached by the one and only Colum Joseph Toll. अलग कहानी है कि कॉलम सर क्वालिफायर्स में नहीं था. Thomas Joseph was the head coach of that squad when we played the qualifiers, with the late Bitan Singh being the assistant coach, and CM Ranjit, the team manager, also helping him, helping everyone in fact as one of the other assistant coaches. So we qualify out of that group. We lost only to Uzbekistan, won all the other matches into 2012 in Tehran. वहां पे हम लोग पहुंचते हैं, और उस समय का उज़्बेक फुटबॉल फेडरेशन का टेक्निकल डायरेक्टर था फॉर्मर टेक्निकल डायरेक्टर एंड हेड कोच ऑफ द इंडियन सीनियर नेशनल टीम, द लेट मिस्टर रुस्तम अक्रमोव. ही वॉज द कीन फॉलोअर ऑफ इंडियन फुटबॉल. रेगुलर हम लोग के साथ बातचीत करते रहते हैं. यह कहानी से याद आ रहा है कि इंडिया हैड डन ए काइंड ऑफ हेल्प और फेवर, हेल्प रादर, कैसे मदद की थी उज़्बेकिस्तान को, बिकॉज उज़्बेकिस्तान वर ऑलमोस्ट आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन. On the field, what did India do that helped Uzbekistan get a further momentum into the AFC Under 16 finals, and they went on to win the championship and eventually gain a ticket, or earn a ticket, book a ticket for the FIFA Under 17 World Cup. And what was the reaction? एक बहुत मजेदार रिएक्शन था उज़्बेक नेशनल टीम का. वो और एक दिन फिर वही कहानी याद आई, उस पे हम लोग बातचीत करेंगे. तो इस अंडर 16 फाइनल्स पे द फर्स्ट मैच वी आर प्लेइंग अगेंस्ट उज़्बेकिस्तान अंडर 16, a very strong Uzbek side. We went down in the match 2-3. Uzbekistan were 2-0 up in the first half. Immediately after resumption, after the second half restart, Uttam Rai scored both goals. It was 2-1, and eventually we went down on a penalty 3-2. A very close match, a very well fought match. तो मेरा थोड़ी शिक्षा लेने का हमेशा, जितना मैं गैदर कर सकता हूं, एक बर्तक की तरह पानी और दूध मिला के कितना दूध में पी सकता हूं, कि मैं कोचेस से थोड़ी बातचीत करते रहते. दैट वाज द एजुकेशन
For me, that has always been the education for me, because I'm not a technical guy. मैं देख के, बात सुन के, मेरी सवालों का जवाब लेके, मैं थोड़ी टेक्निकल, मेरी जो एक्यूमेन है थोड़ा और पॉलिश करना चाह रहे थे. तो Column sir being Column sir told me, Nilanjan, what was our position when we considered all the 3 goals? मैंने थोड़ी scratched my head. I said, position, find out. He didn't say anything. I said, sir, what? I want you to find out. I said, okay. याद नहीं आया. Next day morning breakfast पे मैंने बोला, sir, I couldn't find out, sir. Let me know. Watch the match. मैं मैच को पूरा 90-95 minutes पूरा देखा, noticed क्या ना, I went to him and said, sir, found it out. It was a swimming pool recovery session. Column sir बोले, what? I said, sir, all the 3 goals we considered, we were down to 9 men because two guys were out because of cramps or because of injuries. Very well said. और जो उसने हमें बताया कि वो आउट ऑफ ग्राउंड जाने से हम लोग रोक सकते थे. That's what the players he insisted, and he told me, and he always used to say, need to understand that football is a game of 11 players, and at all the time, all the 11 players need to be on the field. लिंक मिल गया आप लोगों को सुनील छेत्री के साथ. अभी Column Joseph Tull was part of the technical team or the technical regime of Mr. Bob Houghton, as much the other coach Mr. Desmond Bulpin was. All of them, 3 English coaches, were coaching India different age groups at that time. So सुनील के अपने जबान से 2010 की आसपास या 8 की आसपास की कहानी सुनील ने हमें बाद में बताया. तो मैं बोला, सुनील आपने ज्यादा ड्रिबल नहीं करते हो. तो व्हाट ही सेड वाज कि बिल्कुल बात आपने सही बोली, इफ रिक्वायर्ड आई डू, बट नटमेग्स, बॉडी फेंस जो गैलरीज को बहुत पसंद आता है निरंजन दा, वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता. ये हमें सिखाया था द वन एंड ओनली ग्रेट कोच मिस्टर बॉब हाउटन. बोले बॉब सर ने एक दिन हमें बुलाया, बोले कि वॉट एवर यू आर डूइंग, द नटमेग्स, द बॉडी फेंस, the 1 and 2s, the dribbles where जहां पे आप बॉल को छोड़ सकते, आप थोड़ी होल्ड कर रहे हो, ये टेम्पटेशन होता है हर कोई प्लेयर का. तो वो डिसीजन मेकिंग हमेशा एक प्लेयर के पास इमीडिएटली आनी चाहिए. जो जितना ज्यादा और जितना जल्दी डिसीजन मेकिंग सीख जाता है वो उतना ही बड़ा प्लेयर है. और आज के दिन पे आप सुनील छेत्री को देखिएगा, कितने मिनट वो बॉल होल्ड करता है. बॉल होल्ड उसी टाइम तक करते जहां तक जरूरत है. उसको यदि लगता है मुझे बॉल होल्ड करनी है टू गेन सपोर्ट फ्रॉम दी अदर्स जो मेरे पास आ रहे हैं पीछे से काउंटर्स में, और पीछे से अपना पोजीशन ले रहे हैं, और पीछे से नहीं, सामने से भी नीचे, ऊपर से भी नीचे आके पोजीशन ले रहे हैं, आउट ऑफ पोजीशन है, हमें बॉल होल्ड करनी है. इफ समवन्स देयर, अब इमीडिएटली बॉल को छोड़ दो. जरूरत नहीं है न्यू टेक योर ओन पोजीशन, बॉल लो, बॉल दो. सईद रहीम साहब की वही ग्रेट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड इमॉर्टल कोट्स ऑफ नॉट जस्ट इंडियन फुटबॉल बट वर्ल्ड फुटबॉल, बॉल लो, बॉल दो. तो बोलो ऑल ऑफ दिस doesn't matter, because at the end of the day what matters, Bob Houghton ने ये सुनील छेत्री को बोला था, is the result. At that split second आपको तारीफ मिलेगा, गैलरी से बहुत रोर मिलेगा, अप्लॉज मिलेगा, क्यों आपने एक नटमेग कर दिया. If required you do it, but जरूरत नहीं है कि आप रोक के आप वो नटमेग के लिए रोको, बिकॉज हमारा मोमेंटम लूज कर रहे हैं. एंड ऑफ द डे what is written on the scoreboard is the result, whether you have lost or whether you have won. The number of nutmegs, the number of dribbles, the number of body feints, the number of trickery on the field जो आपने किए हैं या करते हो, वो doesn't matter. और सुनील ने बोला कि दादा इससे मेरी रियलाइजेशन आया था कि एज ए स्ट्राइकर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी दुगना हो जाता है, और दुगना हो गया था इनफैक्ट उस टाइम से, बिकॉज मिस्टर हाउटन उसको यही बोला था. तो सुनील को जो स्पेशलिटी है और जिसके स्पेशलिटी के बारे में बात करना मैं चाहूंगा वो ये है
कि आप सभी लोग सुनील छेत्री का डाई हार्ट फैन है, कौन नहीं है इंडिया में। इंडियन फुटबॉल आज के दिन पे एज वी स्पीक इज सिनोनिमस और द बिगेस्ट स्टार हम लोग का क्या है, आइकॉन कौन है, सुनील छेत्री। सुनील छेत्री का पोजीशन एक फॉरवर्ड है। Sometimes he has played on the wings, even for the national team, even for his club. As and when he is a coach's man, as and when required. And मैं फॉरवर्ड इसीलिए इंसिस्ट कर रहा हूं, यानी कि all opponent teams always maintain and know that once you stop Sunil Chhetri, you are stopping the rival. हमें एक बार इंटरव्यू में सिंगापुर की कोच एक बार बोला था, योर असेसमेंट अबाउट इंडिया, इट वॉज अ नॉर्मल इंटरव्यू एंड स्पैट केम हिज रिप्लाई, यू टेक आउट सुनील छेत्री फ्रॉम द मैच एंड यू टेक आउट इंडिया। आई सेड टेक आउट इन द सेंस वी ब्लॉक सुनील, you block India. So that's the kind of trend which most of the rival coaches go in. Obviously the trend's changing because Sunil's playing his role as much as other players in the national team are playing their role. But Sunil Chhetri को obviously man mark किया जाता है और थोड़ी सी एक कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड पे राइवल डिफेंडर्स, राइवल मिडफील्डर्स, राइवल कोच का स्ट्रैटेजी और प्लान में सुनील छेत्री रहता ही रहता है. What that means is he has bore the brunt of lot many tackles. टारगेट मैन सुनील होता है बॉल के लिए हम लोग के तरफ से, ओपोनेंट के लिए स्टॉप करने के लिए. तो एक हिसाब से एक स्ट्राइकर्स टेक द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉडी ब्लोज. इसीलिए सुनील सबलाइमली फिट है. एट हिज एज ही कैन कॉम्पीट विथ एनीवन इन द वर्ल्ड. इगोर स्टिमाश का फेमस कोट भी है जो वेरी राइटली सेड, he has the body of a 29-year-old. But despite all the tackles that Sunil के ऊपर आता है, सुनील लेता है, it's a different story that he's physically very fit, he's very strong, he's very stout. आप उसको हिला के गिरा नहीं सकते हैं. But despite all the tackles, as and when all the tackles जो वो लेता है, उनके ऊपर आता है, बॉडी पे लेता है, हाउ मेनी टाइम्स फैंस आप लोग बताइए आपने देखे हो सुनील छेत्री खुद को स्ट्रेचर करके ग्राउंड के बाहर ले गया है? व्हेन? हाउ मेनी टाइम्स? मैं ये कह रहा हूं बिकॉज डोमेस्टिक फुटबॉल में हम लोगों का पहले से लोग जो बच्चे जो सीखते हैं वही सीखते जो देखते हैं. कोई भी एक छोटा टैकल आ गया, पीपल रोल डाउन, पीपल टाइम वेस्ट करते हैं और फिर क्या फिजियो एंड डॉक्टर रन्स टू द सीन ऑन द ग्राउंड, थोड़ी सी स्प्रे करते, लोगों को थोड़ा वाटर ब्रेक मिलता है. ऑल ऑफ दैट इज ओके, फेयर इनफ. बट आप इतनी ज्यादा डिले कर रहे हो कि रेफरी ने स्ट्रेचर बुला लिया. रेफरी ने स्ट्रेचर बुला लिया मतलब उस प्लेयर को स्ट्रेचर से बाहर जाना ही जाना है. एंड द टीम, as and when the match restarts, the team plays with 10 men on the field. One man less is as good as one of our players have received a red card. Red card नहीं है because within 1 minute, 2 minutes आप बाहर चले गए हो. बाहर चले गए to 1 or 2 minutes, the referee or the assistant referee, or as and when the referee waves, the player comes in. यदि आपकी प्ले हो रहा है खुद के डिफेंसिव लाइन पे और वहां पे एक फ्री किक ऑब्लिक अटैक चल रहा है, यू नीड टू रन, आपका एनर्जी वेस्ट ऑन, यू आर डिफेंडिंग, द ओपोनेंट इज एट एन एडवांटेज ऑफ वन मैन मोड. जो कॉलम जोसेफ टोल मुझे इंसिस्ट किया था कि खुद आप समझो, खुद आप जानो कि 3 गोल हमने जब कंसीड किया था, हम लोगों का पोजीशन क्या था. हम लोग का पोजीशन यही था, we were down to 9 men all of the time because two guys were out of the field which could have been avoided. बच्चे थे. These are the lessons which one needs to learn. So जब भी एक प्लेयर गिर जाता है, गैलरीज में लोग माई गुडनेस खेल तो पाएगा, ये रिएक्शन होता है. मैं भी गैलरीज में बैठ के ही मैच देखा हूं. अब मैं मैच देखता हूं गैलरीज में बैठ के, हमें भी लगता है अरे
इतनी स्टार प्लेयर, इतनी इंपॉर्टेंट क्रूशियल प्लेयर, सब्स्टिट्यूट तो नहीं हो जाएगा? एज एन व्हेन इट्स अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द प्लेयर हु कम्स इन. बिल्कुल, बिकॉज वो फैंस के लिए एक सेटिस्फाइंग मोमेंट है, मोमेंट ऑफ एश्योरेंस है. ओ माई गुडनेस, माई प्लेयर इज बैक. प्लेयर्स इसको एंजॉय करते हैं. मैं किसी के नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी को टारगेट करके नहीं, मैं जेनेरिक एजुकेशनल वीडियो सुनील छेत्री के लाइफ से यहां पे बोलना चाहता हूं. बट उस मोमेंट को आप एंजॉय करने के लिए यू हैव डिप्राइव्ड योर टीम ऑफ प्लेइंग वन मैन लेस फॉर दैट 1 minute, समटाइम्स 90 seconds, समटाइम्स इवन 2 minutes, बिकॉज आपकी वापसी का डिसीजन इज टोटली एट द डिस्क्रिशन ऑफ द मैच रेफरी, नो वन एल्स. आप बाहर जाके हाथ उठा के रेफ आई एम विलिंग टू प्ले, रेफ कैन आई कम इन. रेफ यदि सुना नहीं, आपको इग्नोर कर गया, और रेफरीज ये चीज नोटिस करता है. इट्स लॉट मेनी टाइम्स हम रेफरीज को बोल देते हैं, गाली दे देते हैं, और रेफरी ने गलत डिसीजन लिया. ऑल ऑफ दिस थिंग्स गो इनटू द नोटबुक ऑफ द रेफरी. हाउ मेनी टाइम्स आप डाइव कर रहे हो, हाउ मेनी टाइम्स यू आर ट्राइंग टू फेन एन इंजरी, हाउ मेनी टाइम्स यू आर ट्राइंग टू गेट ए ब्रेक फॉर योर टीम टू गेट ए वाटर ब्रेक. उस हिसाब से रेफरी आपको वापस बुलाता है. These are the unwritten rules of the laws of the game. तो उस हिसाब से आप खेल रहे हो कितने से? 1 man less से. सुनील छेत्री को आप कभी मैच के बाहर नहीं लेके जा सकते. ये उनकी क्वालिटी है, उनकी स्पेशलिटी है. लिव्स फॉर ए मैच, ही लिव्स फॉर एन इंटरनेशनल मैच, क्योंकि वो जानता है इंटरनेशनल मैच मेरे लाइफ में, साल में 10 मिलेगा मैक्सिमम, इससे ज्यादा मुझे नहीं मिल सकता. और उस 10 दिन मुझे खेलने को नहीं मिला, मतलब आई हैव लॉस्ट समथिंग. देयर हैव बीन मैचेस वेयर ही हैज बीन अवे. द फेमस टूर हम लोग का जब कोविड टाइम्स पे मार्च 2021, व्हेन द एंटायर एशिया डिड नॉट प्ले, वी प्लेड. हम लोग को बोलते हैं, फैंस सोचते हैं कि अरे इंडिया तो कोविड के टाइम पे खेले नहीं है. कौन बोला आप लोगों को? वी वेंट टू दुबई, प्लेड ओमान गोललेस ड्रॉ, लॉस्ट टू यूएई 0-6. At that time, find out how many nations in Asia and in the world played an international friendly. 2020 कोविड में आप वापस जाइएगा, नवंबर तक the entire world was kind of locked down, there was no sport. बायो बबल हुआ था इंडिया में, उसके बारे में आई डेडिकेट एन एपिसोड श्योरली आई लीग में. और उससे पहले आई लीग क्वालिफाइज अक्टूबर में, बट देयर वर नो इंटरनेशनल मैचेस. अक्टूबर नवंबर 2020, बैक ट्रैक. What was the next FIFA window? March 2021. India played in that FIFA window. Matches were arranged in Dubai, under the bubble, from under the bubble, 2 matches against very strong oppositions, Oman and UAE. We drew against Oman, lost to UAE 0-6. But the point bone of contention here is India played those matches during the COVID season. And the next window was in June 2021, we traveled to Qatar. Each and every team played the centralized format of the World Cup qualifiers. We were in Qatar and we were there training in Qatar 21 days prior under the bubble, which was helped and arranged by the team management. So मैं हमेशा सोशल मीडिया में सुनता रहता हूं कि हम तो कोविड में खेले नहीं है. फैंस सोचते, जस्ट टू काइंड ऑफ रिमाइंड यू, बैक ट्रैक यू, शार्पन योर मेमोरीज, गो डाउन मेमोरी लेन एंड फाइंड आउट मैं गलत बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं. Anyway, why I am mentioning about that tour of 2021, Sunil missed that tour owing to COVID. He could not play. और मुझे पागल कर दिया था उसने व्हाट्सएप पे each and every team movement पूछते because he was missing it. I could understand his loss. He was taking it as a personal loss कि दादा ओमान और यूएई के खिलाफ when did we last play an international friendly? दुबई में. And I am not there because मुझे कोविड हुआ है. That was his loss. And each and every 5 minutes there used to be a ping, ping. During the match, obviously the matches were telecast. Match की preparation, match की practice कैसे, used to take regular updates because that was his loss. You cannot keep Sunil Chhetri out of a match. फुटबॉल हर किसी का जिंदगी होता है. कितने सारे बार उसने प्लेयर्स को, जूनियर प्लेयर्स को जाके समझाया है कि इफ यू आर 21, 22, 19, 24, इफ यू आर नॉट प्लेइंग, कंसिडर इट एज योर ग्रेटेस्ट फेलियर. आप बेंच पे क्यों बैठे हो? बहुत बार आके बोलते थे, दादा इनको समझाओ, इसको खेलनी है. हाँ, ऑब्वियसली पीपल विल प्ले, आई एम नॉट द कोच टेक्स अ कॉल, बट ही यूज्ड टू इंस्पायर एंड स्टिल इंस्पायर्स एंड मोटिवेट्स प्लेयर्स कि
You have to be there, you have to play, because this is the age which you need to play. That's the realization and the education it gives to the junior players. Because उनके लिए एक मैच मिस करना is like a crime that he has committed. And मैच तो छोड़िए, एक मिनट भी वो मिस नहीं करेगा. बहुत सारे मल्टीपल स्टिचेस लेके 2 players ऑन द फील्ड एक बार इंडिया के एक मैच पे खेले थे. डिस्पाइट एंड इग्नोरिंग द डॉक्टर्स एडवाइस, उसमें एक सुनील था, दूसरा कोई था. लेट दैट बी केप्ट फॉर ए डिफरेंट स्टोरी. एंड सुनील गेट्स डिस्टर्ब्ड. सपोज को कोई बीमारी आई है, कुछ फीवर आया है, किसी का माइंड में यदि बाई एनी चांस डाउट लगा कि मैं उस दिन शायद अवेलेबल नहीं रहूंगा, वो पागल हो जाता है. आपको खेलनी है. दिस इज द, my apologies, this is the life of a player. So Sunil Chhetri ka unique speciality which makes him Sunil Chhetri the basics is this: his desperation, his motivation, his looking forward, and his never say die attitude to play a match for India and not lose a single, I won't say minute, but a single second on the field. The trend continues for the betterment of obviously his club, Sunil himself, and most importantly for Indian football. Hope you like our content which we give you. We try to speak from our experience. There are a lot many other content of similar quality and on similar lines coming up. Stay well, stay safe. Till then, बोलते रहिए, बोल दादा बोल. Thank you. Namaskar.